Already, Bismillahirrahmanirrahim. So, I'm using the camera, which is picture in picture, so you can see my video also on the slide. So, I think for this particular post, probably we need to have such an arrangement so that you can see the movements of my hand and the gestures and the axis which I want you to practice yourself also, which we talked about last time. We start our today's lecture, which is about spatial description and transformation. In fact, we are going to talk about the space in which two-dimensional space or three-dimensional space we are familiar with the two-dimensional space. We have been studying statics and dynamics also. Did you people got a chance to study 3D dynamics also? Can somebody respond, please? Did you get a chance to study 3D dynamics? Yes. Please, can somebody respond? Yes, sir. Okay, so you have a fair idea. I think you have a fair idea of three-dimensional space, and you have a fair idea about the orientation of the axes also. So probably that we might not take much time in that explaining to you the axes then, because if you have the fair idea, so we can straight away jump into robotics and the orientation of frames and stuff like this. So let me first introduce to you the terminology which is known as frame. So we are introducing, and by the way, today we will be starting chapter 2 of your short book. Some 2 to 3 slides of the lecture. The first 2 3 slides they're taken from chapter number 1 of the book, and mainly we will be focusing on chapter number 2 of the book today. Partially, we will cover chapter number 2 today, and then tomorrow, inshallah, we will try to finish it off the chapter number 2 of your book. So, the frame is defined as an order or a description which defines or describes the position and orientation of a body in space. Number 1, so this is a description of a body through frame about its position and orientation in space. And what we will do actually, we will attach a coordinate system or a frame. So a frame is also known as a coordinate system. And what is the coordinate system? We know that a coordinate system may look like this. We have X and Z here. So y would be going to be gold. So this will be the orientation of a frame or a coordinate system. So if you look at this figure, so you can just see that this is the base of the robot, and we have attached a frame to it. This is X, Y, and Z. So we have attached a frame to the base of the robot. Then we have attached one more frame. Look at this. This is another frame which is attached to a point of which is in between these grippers. So actually, this is the tool frame. This is called tool frame for the robot. So this is the tool frame of the robot. And then if we want to pick up certain objects or we want to work on certain objects, so each object, like you can see one object here, you can see a cylindrical object here. So we actually attach the frames to all the places, to all the objects
where we want to work or where we want to reach through our manipulators. So I repeat that we have a base frame. This is called the base frame of a robot. Then we have a tool frame of the robot where we hold a tool in the gripper of the robot, and then we have the frames attached to the objects on which we want to work on. So until now we are clear about the frame and its attachment. Yes, sir. Okay, that's great. So just going a little further, what we would be doing in the robotics. So these are actually the joints. One, two, three. So these green ones are the joints. So while we will be dealing with robotics, so what we are going to do is that we are going to attach frames to each joint as well. So we are going to attach frame to each joint. So what would these frames do for us? These frames actually are going to give us the orientation and position of this tool frame. So with the help of these joint frames, actually I'm going to get to know the position and orientation of my tool frame with respect to my base frame. So this is what we would be doing in the robotics. So we would exactly know that how our or with which configuration of these joint variables, and these joint variables actually are the angles. So I'm going to explain it in detail during the whole as we progress in our course. But at the moment, what you need to do is to know or to make yourself understand this, that we have the frames attached to every moving joint of the robot, and that actually provides us a facility to know the tool frame of my robot with respect to my base frame. So this is how we are going to go with the robotics and the frame attachments. So, are we clear until here? Yes, sir. All right. So we move forward, and now we are going to talk about manipulators. Since we have talked about in our introductory lecture also that during this course we would only be dealing with the manipulators. So what a manipulator is? So these are certain specific characteristics which are related to manipulators. So a manipulator, if you see, you can see a manipulator here, you can see a manipulator here. So if I look at these manipulators, so when we define a manipulator, so it should have rigid links. So this is actually, let's see, we call this is link number one from base frame to first joint. So we can say that this is link number one, this is link number two, three, sorry, this is link number three, and this is link number 4. So we consider that each of these links, they are rigid. So it means they do not change their shape. These links do not change their shape, and these links do not change their dimension. And then these links are there connected with joints. We have already talked about it a little. So these round, the circles which you see are actually the joints. And these joints, they rotate to have a different configuration of this robotic arm. Then we have some instrument, yeah, or the position sensors which allow the relative position of neighboring link. So in fact, whenever this joint, let's see if I call this as joint number 1. So if I call this as joint number 1, so if joint 1 rotates, let's see, if rotates in Z is coming out of the board.
for at the moment, if I say, so Z is coming out of this slide. So if I rotate this joint in by an angle, let's see, theta, by an angle theta in a counterclockwise direction. So this whole length is going to, and this way also is going to move like this. So we need to have some position sensors which are actually going to tell me that how much any joint has rotated. So this is going to be, this is for the revolute joint. So here I have talked about the revolute joint in this diagram. And we need to have a position sensor to give us an idea, or give us not the idea, actually give us a value of rotation of a joint. So all the joint angles, so here it is written that all the joint angles in case of revolute joints. So if we have a revolute joint, then it means that we have a rotation of our robotic limb. And if we talk about a prismatic joint, what is a prismatic joint? G, can somebody please contribute towards the answer? What is a prismatic joint? Sliding. G, sorry? Sliding. Sliding joint, okay, or moving, which are moving in an axial direction. Sliding joint in an axial direction. So this is a prismatic joint. If you look at this, so this is a prismatic joint. And what is happening here that in this joint too, you can see this arrow which is pointing out in both the directions, in a horizontal directions, this side as well and this side as well. So it means that the manipulator inside can slide through this one. So this is called a translation. So this is called a translation when we talk about prismatic joint. So in fact, what I wanted you to bring to two terminologies which are called rotation, and translation, which are called rotation and translation. In today's lecture, we would be going through these two terminologies, which are called rotation and translation, and we would be dealing with these in detail. We will be diving into the mathematics of these rotations and translations also. So please bear with me, remain attentive, because if you miss out something, so it will be very difficult to understand it in a short span of time. So you need to please, I would request you all to please remain attentive, ask question if you are not able to understand something, please stop me right there and ask me to repeat it, because otherwise, if you are unable to grasp the concept, so the further slides will become even more difficult for you. Okay, so I would request you all to please stop me wherever you feel like and you are unable to understand something, please ask me to repeat. So are we good and are we attentive now? Yes, sir. Okay, that's great. So let's move forward and talk about forward kinematics. So before we talk about forward kinematics, you have studied dynamics. So how do you define kinematics? जी, कोई मुझे इसका जवाब दे थोड़ा सा कि हम काइनेमैटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? Sir, जी बोलिए. it depends on the mechanics of an object or the motion of an object without reference to its forces. Without the motion of an object, study of motion of an object, without reference to the forces that cause its without motion. reference to the forces. That's relative. So here you see this is the definition of kinematics, and it is the science of motion which creates motion without regard to the force which passes it. So this is typically just the geometry which gives us the motion
So you have been studying this in dynamics, so this is just an extension of this. So now I'm now dividing this kinematics into two parts. One is the forward kinematics and the other one is the inverse kinematics. So let me just explain to you what is forward kinematics. So just look at these three lines. I'll read it for you and then we will discuss it also. So given a set of joint angles, the forward kinematic problem is to compute the position and orientation of the tool frame relative to the base tool. So here you see this is your tool frame and this is your base tool. So what does the forward kinematics do for us is it allows us to compute the position and orientation. So हमने जो दो वर्ड यूज किए थे, हमने पोजीशन की जो बात की थी, हमने कहा था कि पोजीशन इज एक्चुअली a translation from one place to another. And if it does not change, it means there is no translation. If the position does not change, so it means that there is no translation. And then is the orientation, which we designated or denoted as a rotation. So, in fact, this is translation of frame. This is rotation of frame. So ये जो ट्रांसलेशन और रोटेशन है फ्रेम की, ये हमें एंड इफेक्टर की पोजीशन या ओरिएंटेशन बताती है. सो फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स क्या चीज है कि यू आर गिवन दीज एंगल्स θ1, θ2, θ3 and with the help of these joint variables we are able to find out the position and rotation of the tool frame. So this is called forward kinematics. Ji, is this understood? Yes, sir. Okay, so we move forward to the second part of kinematics. This is called inverse kinematics, and this is the vice versa of forward kinematics. And what does it do? Given the position and orientation, so we know the translation, we know the rotation of the end effector. So we are given this of the end effector of the manipulator. So what we need to calculate, we need to calculate all possible sets of joint angles. All possible sets of joint angles that could be used to attain this given position and orientation. So इस वाले में क्या हुआ कि we are given the position and orientation that this is the position we want to reach. So what all can be the combinations of the possible joint angles which can make us attain that position and orientation in terms of end of it. अच्छा, अब जो inverse kinematics problem है, this is a little complicated as compared to the forward kinematics. Forward kinematics में you have given the joint variables, तो आप जब उन joint variables की वो value feed in करते हैं या when you rotate your joints on that certain theta or certain angle, so you are bound to reach to the end effector. Your end effector is bound to reach to an orientation or and a position which is related to or associated to those thetas, so those joint angles. But जब मैं inverse kinematics में आता हूँ, तो अब क्या है कि मुझे एक पोजीशन और ओरिएंटेशन बता दी गई है और वो मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हासिल कर सकता हूँ. मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ देता हूँ. सो लेट्स सी कि मेरे पास एक ये रोबोट है जिसका एक ये लिंक है और एक ये लिंक है और एक ये लिंक.
जिसके आगे मेरा एंड इफेक्टर लगा और यहाँ मैं पहुंचना चाहता हूँ तो आई हैव गिवन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P। अब एक तो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है कि मैं इसमें ऐसे पहुंच दूं। अब एक और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है? लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। सो आई कैन रीच दिस पॉइंट P, यही मेरा बेस है, ठीक है। इस को मैं ये वाला जो लिंक है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं दूसरे को यहाँ ले आता हूँ और तीसरे को मैं यहाँ ले आता हूँ एंड still I can reach this place. So अब देखिए रेड वाला भी जो मेरा मैनिपुलेटर है या रेड स्टेट ऑफ द मैनिपुलेटर है वो भी पॉइंट P पे पहुंच गया और ये जो ग्रीन स्टेट है ये भी पॉइंट P पे पहुंच गया। अब फर्क क्या है इन दोनों में? So there is a difference of joint angles. So there is a difference of joint angles. So इसलिए हम ये कह रहे हैं कि the inverse kinematics problem is more complicated as compared to forward kinematics because you can reach a certain position and orientation in more than one ways or more than one set of joint angles. So अब इसमें क्या होता है कि हमने वो joint angles लेने होते हैं या उन joint angles को कंसीडर करना होता है जिसमें मिनिमम मूवमेंट के साथ हम अपने उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं. So this is inverse kinematics. So now are you clear about the difference of forward and inverse kinematics? Yes, sir. Basically, sir, forward makes them go to a position, and inverse lets you go back to the original position. That's what it means. No, it does not let you go back to the original position. Actually, the inverse kinematics give you more than one configuration of joint variables to reach the same position. देखिए अगर दोबारा आई रिपीट इनवर्स काइनेमैटिक्स में मैंने आपको ये जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है जो मैंने ड्रॉ की है, अगर मैं रेड में देखूं सो रेड में आप देखिए कि जो मेरे रोबोट के लेग्स हैं उनकी एक सर्टेन पोजीशन है, ओरिएंटेशन है एंड स्टिल जो ग्रिपर है मेरा वो पी पोजीशन पे पहुंच गया. If now I look at the green configuration, so in the green configuration again the gripper has reached point P, but now the joint variables or the thetas they are different from the red one. So it has another configuration. So मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि inverse kinematics में we have more than one combination of joint variables theta to reach a certain position point P. G, am I clear now? Yes, sir. Okay, that's it. So we move forward and now we are going to talk about the description of position. We are going to talk about the description of position. So सबसे पहले तो आप देखिए कि I have drawn a frame A. अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि जहां भी हमें ये वाला सिंबल नजर आएगा A written in brackets like this, so this will be called a frame. So immediately हमारे अब ये मैं वो notations use कर रहा हूँ जो आपकी book में मौजूद है. So I'm going to use the same notations which are being used by the author John J. Craig in the book, which is the textbook. So हमें किसी किस्म की confusion जो है वो ना हो. So whenever I'm going to talk about a frame, so immediately मेरे ज़हन में एक चीज आ जानी चाहिए और वो मेरे ज़हन में चीज क्या है कि इस फ्रेम A के साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच है. So ये फ्रेम A में देखें तो this is the coordinate system which has three axes, XA, then YA, and then ZA. So ये description हो गई सबसे पहले एक फ्रेम. अब नेक्स्ट मैं बात करने लगा हूं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन. सो पोजीशन की डिस्क्रिप्शन क्या है कि आई हैव अ पॉइंट हियर, ये जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा है. सो आई हैव अ पॉइंट हियर व्हिच हैज अ सर्टेन पोजीशन इन फ्रेम A. I repeat, I have this dot which has a certain position in
frame A. So now if I draw a vector which is called PA, ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि ये नोटेशन मुझे क्या बता रही है, ये नोटेशन मुझे बता रही है कि पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इन ए, ये नोटेशन मुझे ये बता रही है। और ये वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर वो वेक्टर है जो फ्रेम ए के ओरिजिन से एक सर्टेन पॉइंट पे जा रहे हैं, जो कि ये मैंने ब्लैक डॉट लगाया। आई रिपीट, ये एक वेक्टर की पोजीशन दे रहा है मुझे इन फ्रेम ए, एंड दिस वेक्टर इज गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम ए टू दिस डॉट, जिस डॉट के ऊपर मैं पहुंचना चाहता हूं। तो अगर मैं इस डॉट की एक 2D में इसको देखना चाहूं, अब मैं जरा 2D में जा रहा हूं, एंड देन वहां से हम दोबारा रिवर्ट करेंगे टू 3D। सिर्फ आपको थोड़ा सा ये आइडिया देने के लिए कि यार हम ये कैसे इन चीजों को देखेंगे अभी। सो इफ मैं इस वेक्टर को, जो कि PA जिसको मैं कह रहा हूं, अगर इस वेक्टर को मैं 2D में यानी कि XY प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करूं, तो मुझे ये रेड कलर में नजर आएगा। और इस 2D में अगर मैं देखूं, 2D में ही मैं इसको भी देखूं, तो इस वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन XA, इस की पोजीशन ऑन XA would be given by this, ये प्रोजेक्शन है, and if this angle is theta, so this will be cos of theta। अच्छा, हम प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर पोजीशन निकालना चाहते हैं, प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और या हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और फिजिक्स की अपनी फिजिक्स को याद करूं, तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पे टॉर्च रखते थे और कहते थे कि यहाँ से इसके ऊपर रोशनी डालो, तो इस वेक्टर P की प्रोजेक्शन इस वेक्टर X के ऊपर मुझे कुछ इस तरह से नजर आती थी। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये मुझे इस तरह से नजर आती थी, और अगर ये एंगल थीटा है तो हम कहते थे कि दिस इज इक्वल टू P cos of theta। So actually this is the dot product of P with respect to X। So actually ये एक P वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है X वेक्टर के साथ। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ रही है? सो हम ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट्स और इसकी हम बात करेंगे, तो इसलिए मैं जरा थोड़ा सा आपको ये एक रिवीजन करा रहा हूं कि दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ P ऑन X, और इसको हम याद है आपको लिखते होते थे Px cos of थीटा। और अगर ये मेरा X जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ये X क्योंकि 1 हो जाता है, तो फिर ये मेरा सिर्फ P cos थीटा रह जाता है। और अगर ये P भी मेरा एक यूनिट वेक्टर है, so this will be reduced to cos थीटा only, अगर P भी एक यूनिट वेक्टर है और X भी एक यूनिट वेक्टर है। सो यहां भी आप देखिएगा कि यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये इसका cos कंपोनेंट आ जाता है, और इसका जो दूसरा है, अगर और इस तरफ अगर मेरे पास फाई है, ये फाई है, तो जो मेरा y के ऊपर कंपोनेंट है ये वाला, so this will be again cos of phi, provided that I have P as a unit vector and YA also as a unit vector। तो ये बात समझ आती है कि मैंने आपको थोड़ा सा ये 3 डायमेंशन में आपको 2 डायमेंशन में लेके गया हूं, और अब मैं आपको दोबारा 3 डायमेंशन में लेके जाऊंगा, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस वक्त मैं 3 डायमेंशन के अंदर अपने इस वेक्टर को देखना चाहता हूं, सो ये मुझे
पी एक्स पी वाई और पी जी की फॉर्म में नजर आता है, विच इज पी एक्स क्या है, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड एक्स, जो कि मैं इसको इस तरह से वेक्टर पी एंड वेक्टर एक्स ए जो कि है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मुझे पी एक्स की फॉर्म में नजर आता है। इसी तरह पी वाई का जो है मुझे पी एक्स वाई ए की फॉर्म में नजर आएगा, डॉट प्रोडक्ट जो कि पी और एक्स, सॉरी एक्स नहीं वाई, दिस वुड बी वाई, this would be y a, and अगर मैं z की बात करूं तो this would be p dot z a, जो कि तमाम यूनिट। सो ये मैंने आपको एक पोजीशन की डिस्क्रिप्शन दी है ऑफ एनी पॉइंट इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये क्लियर हो गई की बात? अच्छा, ये चीज ऐसी है जो कि आप पहले पढ़ चुकी हैं, मैंने सिर्फ आपको इसकी एक रिवीजन कराई है। अब मैं जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ आ रहा हूं, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को आपको याद है हमने रिलेट किया था कि ओरिएंटेशन इज इन फैक्ट रिलेटेड टू रोटेशन। सो हम कोई से दो फ्रेम्स जो कि फ्रेम ए है एंड देन फ्रेम बी है, तो हम फ्रेम ए और फ्रेम बी, अगर आप यहां थोड़ा सा गौर से इस चीज को देखें तो आपको नजर आता है कि फ्रेम ए एक सर्टन ओरिएंटेशन में है। लेट्स सी कि मैं इसकी वो बना देता हूं कि ये एक्स ए था, ये वाई ए था और ये जेड ए था और ये सारे यूनिट वेक्टर्स, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये फ्रेम बी भी यूनिट वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो अब देखिए कि फ्रेम बी का जो जी है उसकी ओरिएंटेशन जी ए से डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेम बी है उसने अपनी ओरिएंटेशन, अगर वो पहले कोइंसिडेंट था यानी कि वो फ्रेम बी और फ्रेम ए बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर मौजूद थे, सो अब ये फ्रेम बी ने नंबर वन तो अपनी ओरिएंटेशन बदली है, और नंबर टू ये फ्रेम बी एक वेक्टर जो है विच इज पी ए पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ये ट्रांसलेट भी है। अभी मैं सिर्फ ओरिएंटेशन की बात करूंगा। अब इस रोटेशन को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, अब ये बड़ी जरूरी चीज है, मैं आपकी अटेंशन यहां पे चाहूंगा। आर यू ऑल अटेंटिव? अगर नहीं है तो काइंडली अटेंटिव हो जाएं और एक बंदा मुझे थोड़ा सा यस भी करे। Yes. जी जी, ओके। सो आई हैव gotten information from someone that you people are attentive. So I am going to introduce to you a notation which is written here, जो कि मैं ये रेड सर्कल का। What does this mean? This means B relative to A, and this is the B frame relative to A. So whenever I am going to write something like this, so मुझे ये नजर आएगा कि B relative to A उसकी orientation is given by this matrix. ये मैट्रिक्स कैसे बनता है अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एक टर्मिनोलॉजी को, RBA, which tells us that frame B relative to A, या in other words हम इसको कह सकते हैं B with respect to A. So ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपकी बुक में यूज है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिखी है कि आप B relative to A भी कह सकते हैं, आप इसको B with respect to A भी कह सकते हैं, या एक और चीज भी है आप इसको कह सकते हैं, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, कि B as seen from A. Let me just write it down here for you. B as seen, sorry, as seen from A. As seen from A. ठीक है, अब बड़ी गौर से देखिएगा,
मुझे कैसे पता लगता है कि मैं किस फ्रेम को कहां से देख रहा हूं? सो एक्चुअली ये जो वेक्टर है AP, आप देखिए ये इसका जो एरो हेड है, ये मुझे बता रहा है कि I know B relative to A. I repeat, ये जो वेक्टर AP है आपको नजर आ रहा, ये मुझे ये बताता है कि I know B, frame B relative to frame A. या दूसरा क्या है, B with respect to A, या B as seen from A. सो अगर मैं इसको ऑपोजिट करूंगा, इस एरो को ऑपोजिट कर दूंगा, तो ये सारी नोटेशन जो है वो बदल जाएंगी। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये रोटेशन वाली नोटेशन आपको क्लियर हुई है? अगर आपको ये क्लियर है फिर हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। Yes, sir. Okay, somebody else should also kindly participate. कोई और दो एक लोग और kindly बताइए कि हाँ जी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको समझ में? Yes, sir, clear. गुड, शाबाश। कोई एक और kindly? Yes, sir. Okay, done. So if we have information from three people, so I assume that everybody is on board, and now we know this notation, which is called RBA. So we know that this is the rotation of B with respect to A. अब ये देखिएगा, मैं अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करने लगा हूँ, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब मैंने जाहिर है ये एक रोटेशन है, तो इस रोटेशन में क्या होना चाहिए? इस रोटेशन में कुछ मैपिंग होनी चाहिए। देखिए ना, अगर B रिलेटिव टू ये वही वाली मैपिंग है, तो मैंने आपसे पीछे बात की थी कि मैं प्रोजेक्शन लूंगा। मैंने वहां वेक्टर P की, आपने देखा था P A की प्रोजेक्शंस ली और X1। यहां मैं क्या करने लगा, मैं ये देखें ये पूरा फ्रेम है, ये देखें B विद रिस्पेक्ट टू A क्या है कि XB in frame A, ये देखिए XB in frame A, so B relative to A. Similarly, YB in frame A, and similarly ZB in frame A. अगर मैं इसको elaborate करूं, इसको मैं elaborate करूं तो सिर्फ ये देखिएगा, ये क्या है? Let's see. हम सबसे पहले X B की बात करते हैं relative to A, तो मैंने क्या किया, XB का डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद X A के साथ, फिर XB का डॉट प्रोडक्ट YA के साथ, फिर XB का डॉट प्रोडक्ट ZA के साथ। ये बात समझ आ गई? रिपीट करूं या ठीक है? रिपीट कर दें, क्यों किया क्यों हमने? ओके, थोड़ी सी चूंकि आवाज जरा कमजोर आई है ओके की, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि मुझे जरा अपनी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि आप लोगों ने मेरी बात समझ ली है। सो ये हमने कहा था कि XB जो कि हमारा फ्रेम B का X कोऑर्डिनेट है, उसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू A देखना है, तो मैंने XB को फ्रेम A के साथ, फ्रेम A के XA के साथ डॉट किया, प्रोजेक्शन ले ली, B की YA के साथ ले ली, XB की ZA के साथ ले ली। तो आई हैव नाउ अ 3x3 मैट्रिक्स। ये मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, which will be called a rotation matrix, which will give me the rotation of B relative to B. ओके, अब तो ये देखिए, ये जो एक आपको इसका नजर आ रहा है कॉलम या वेक्टर या एक कॉलम जो नजर आ रहा है, वो एक XB की प्रोजेक्शन है और इसका। अब अगर मैं इसकी ये सारी प्रोजेक्शन लूं तो मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स आ जाता है, जो आपको ये राइट साइड के ऊपर नजर आ रहा है, which has numerical values in it, R11, R12, R13,
ये कैसे आएंगी, कैसे कैलकुलेट होंगी, इनको हम अभी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप जेल में ये रखिएगा कि ये 3 by 3 मैट्रिक्स जो है ये इनफैक्ट एक 3 by 3 मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ अरिथमेटिकल वैल्यूज मौजूद हैं। सो ये मुझे आप बताइए कि ये आपको रोटेशन मैट्रिक्स अगर क्लियर हो गया तो मैं इसी रोटेशन मैट्रिक्स में से एक और चीज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। वो क्या है, सिर्फ पहली रो को देखिए जिसको मैंने आपके सामने इस वक्त दिखाया। पहली रो को अगर आप देखें तो ये रो आपको क्या बताती है कि these are vectors of expressed in V। पहले रोटेशन मैट्रिक्स में क्या बता रहा था जी, पहले रोटेशन मैट्रिक्स में क्या बता रहा था, जो हम आर बी ए की बात कर रहे थे सर वो ये बता रहा था कि एक्सपी कॉलम्स क्या, की। कि अगर एक्सपी को एक्स ए से देखा जाए तो फिर उसकी क्या पोजीशन नजर आएगी? जी अभी मैं आपको उस तरफ लेके आऊंगा, सिर्फ देखिए हमें पहले जो ये दिखा रहा था, लेट मी जस्ट टेक द पॉइंटर, ठीक है। हमें ये जो रोटेशन मैट्रिक्स था ये हमें क्या बता रहा था कि बी वेक्टर्स ऑफ बी फ्रेम बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर्स इन फ्रेम ए, ये हमें ये बता रहा है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रो को देखूं तो ये पहली रो मुझे क्या कहती है, ये मुझे बता रही है वेक्टर्स ऑफ ए which are expressed in B। इसी तरह अगर मैं सेकंड रो को देखूंगा तो ये भी वेक्टर ऑफ ए है, ये वाई ए है जो बी में नजर आ रहा है, और जो थर्ड रो है ये जी ए है जो बी में नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस वेक्टर या इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दूं, अगर आई टेक अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, इफ आई टेक अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स तो क्या होगा, ये जो रोज है ये कॉलम्स बन जाएंगे और इसी ट्रांसपोज विल transform into a rotation matrix which is going to now give me A relative to B। जी ये बात समझ आती है? यस सर। ओके, सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मैं किसी एक रोटेशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो वो मुझे जो जो मैं यहां से आपको कह रहा था ना कि अगर मैं एरो को उल्टा कर ये वाली बात, ये वाली बात, अगर मैं इस एरो को उल्टा करूं तो अगर मैं अपने रोटेशन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूंगा तो इनफैक्ट मुझे ये वेक्टर ऐसे मिल जाएगा लाइक दिस, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस तरफ आपका एरो का हेड जा रहा है एक्चुअली दैट फ्रेम इज नोन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम जिसकी तरफ आपका एरो का टेल जा रहा है। सो लेट मी जस्ट पुट इट हियर कि अगर मुझे एक नोन वेक्टर था which is b with respect to a, उसको अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज करने से मुझे जो वेक्टर b with respect to a का ट्रांसफॉर्मेशन या रोटेशन का मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज would be equal to a relative to b रोटेशन मैट्रिक्स। जी ये वाली बात आप मुझे बताइए कि किसको समझ नहीं आई, अगर कहीं किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे एक दफा फिर पूछें ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि हम ये रिलेशनशिप कैसे बनाएं। सर क्वेश्चन ट्रांसपोज की सिग्निफिकेंस क्या है इसमें?
हम ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं? ट्रांसपोज की सिग्निफिकेंस ये है कि मुझे पहले अगर B relative to A पता था, गिवन था मुझे रोटेशन मैट्रिक्स जो कि B relative to A है, अगर मैं उसको ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे A relative to B ही मिल जाएगा। ठीक है सर। या ठीक है, सो क्रक्स इसका या समराइज अगर मैं करूं वो ये है कि जो B relative to A known rotation matrix का transpose will be equivalent to a rotation matrix which will give me A relative to B, जो ये आपको इस इक्वेशन में नजर आए, इस वाली इक्वेशन में नजर आए। जी, अगर किसी को समझ नहीं आई ना तो वो काइंडली बताए ताकि मैं इसको रिपीट करूं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि रोटेशन क्या है, रोटेशन का ट्रांसपोज। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां तक यू पीपल आ गए। अब मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेम की तरफ आ, देखें हमने पोजीशन की बात कर ली, हमने रोटेशन की बात कर ली, अब मैं इस पोजीशन और रोटेशन इन दोनों को मिक्स करने लगा, इन दोनों को आपस में मिलाने लगा। तो अगर इफ आई वांट टू नो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्रेम B relative to A in terms of rotation and in terms of translation to both, तो ये मुझे ऐसे नजर आएगा कि ये जो फ्रेम B है इसको जानने के लिए, इसकी रोटेशन और इसकी ट्रांसलेशन को जानने के लिए आई नीड टू हैव अ मैट्रिक्स जिसमें कि मेरे पास एक रोटेशन का पार्ट होगा, सो दिस इज रोटेशन पार्ट, एंड दिस इज ट्रांसलेशन पार्ट। और आप ये देखेंगे ट्रांसलेशन पार्ट मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि पोजीशन ऑफ बी ओरिजिन, ये जो बी ओ आर जी लिखा हुआ है ये एक्चुअली बी ओरिजिन है। सो पोजीशन ऑफ बी ओरिजिन relative to A, so this is translation। ठीक है, तो अब हमने पहले सबसे पहले ट्रांसलेशन पढ़ी हमने, फिर हमने रोटेशन पढ़ ली, दोनों चीजें पढ़ ली। अब मैंने इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके आपको एक फ्रेम की डिस्क्रिप्शन बता दी कि अगर मैं एक फ्रेम की डिस्क्रिप्शन एक दूसरे फ्रेम में देखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ रोटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो वो मुझे इस तरह से नजर आए। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को लेबल करता हूँ। अब मैं इस डायग्राम को लेबल करूं तो मुझे क्या नजर आता है? What I know here is that now see this is a U frame जिसको मैं यूनिवर्सल फ्रेम कह रहा हूं, एक A फ्रेम है, एक B फ्रेम है और एक C फ्रेम है। अब देखिए बड़े इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा यहाँ पे, ये आपको एक वेक्टर नजर आ रहा है, ये वेक्टर मुझे क्या बता रहा है? दिस इज गिविंग मी P B origin with respect to U. Am I right? ठीक है, अब ये इसकी मुझे कुछ भी पता है और अगर मुझे इसकी रोटेशन भी पता है तो इसका मतलब है कि मुझे इसके अलावा इसके साथ साथ मुझे रोटेशन ऑफ बी
with respect to, oh sorry, rotation of A, sorry, I'm sorry, ये B origin नहीं है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, I'm sorry, this is actually and this is A origin, this is A origin, और rotation भी मुझे A की relative to U पता है, ये मुझे एरो ये बताता है, ये पता है मुझे क्या बताएगा जी, कोई चीज कोई मुझे लिखवाएगा, ये एरो मुझे क्या बता रहा है, ये वाला एरो मुझे क्या दो चीजें बता रहा है, लेट्स सी, पहली चीज क्या बता रहा है, ये रोटेशन में क्या बता रहा है, कोई लिखवा सकता है मुझे टाइम, जी जी प्लीज लिखवाइए, जी प्लीज, this is telling me rotation of C relative to A, एक ये बताता है मुझे, और सेकेंड ये मुझे पोजीशन ऑफ C origin relative to A बताता है, am I right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो ये मुझे ये बता रहा है, और अगर मैं एक थर्ड वेक्टर, अब ये कोई काइंडली मुझे कोई लिखवाएगा जी, मैं जस्ट वांट टू बी श्योर कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ रही है, ये वाला वेक्टर मुझे क्या बताएगा, Sir, rotation of B vector with respect to जी U. with respect to U. U, very good, so rotation of B with respect to U, और दूसरा क्या बताएगा मुझे, Sir, position of B origin, position of B B origin, origin, B origin B origin with with respect to U. respect to U, U. जबरदस्त जबरदस्त, बस ठीक हो गई, अब मुझे तसल्ली हो गई है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई, जबरदस्त, सो वी मूव फॉरवर्ड एंड मैं जरा इसको मिटा दूं सो दैट आप ये वाली स्टेटमेंट को पढ़ सकें, जी ये स्टेटमेंट क्या कहती है, दिस स्टेटमेंट सेज position could be represented by a frame whose rotation matrix part is identity matrix, अगर मैं देखिए सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा हूं, सो उसका जो ये रोटेशन वाला पार्ट है, इस ये वाला जो रोटेशन वाला पार्ट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा अगर रोटेशन नहीं हो रही, यानी कि वी आर ओनली गिवन अ पोजीशन कि बी ओरिजिन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू या इन रिलेटिव टू ए हमें नोन है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ इक्वेशन की, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये वाली, सो अगर मुझे ये बताया जा रहा है कि बी फ्रेम के ओरिजिन मुझे ए में रिलेटिवली मुझे पता है, और मुझे रोटेशन का नहीं बताया जा रहा, तो मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि इसका मतलब है कि देयर इज नो रोटेशन हैपनिंग, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि दूसरा फ्रेम सिर्फ रोटेट किया है, सिर्फ रोटेट किया है, लेकिन उसने सॉरी सिर्फ ट्रांसलेट किया है, उसने कोई मूवमेंट नहीं की, अच्छा लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दिस, जी आपको इस वक्त ये जो कैमरा का व्यू आपको इस वक्त नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको ये तीन मार्कर्स नजर आ रहे हैं, Yes, sir. ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको आई हैव एक्चुअली मेड दीज टू फ्रेम्स, जो कि ये दो सेट्स हैं, ये दो सेट्स हैं, ये मैं इनको ऐसे साइड बाय साइड रखता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, नाउ कैन यू सी बोथ, जी यस आई थिंक यू आर एबल टू सी देम नाउ, ओके, सो Yes, sir. अगर मैं इस फ्रेम को
बिल्कुल इसके कोइंसिडेंट यानी कि इसके ऊपर रख दूं, ये चूंकि ये मार्कर है, ये थोड़ा सा आपको साइड बाय साइड नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर यहां रखूं और ये बिल्कुल इसके साथ कोइंसिडेंट हो जाए लाइक दिस। तो अब क्या है कि ये दोनों फ्रेम्स जो कि मैंने आपको ए फ्रेम और बी फ्रेम बना के दिखा रहा हूं, सो ये ए और बी फ्रेम जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों एक ही ओरिएंटेशन में, दोनों एक ही पोजीशन में। सो अगर इफ आई नाउ मूव frame B here without changing any rotation, without changing any orientation. So इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है उसमें जो रोटेशन मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी है, एंड frame B has only translated with respect to frame A. ये वाली बात समझ आ गई? जी, तो मुझे पहले कोई रिस्पॉन्ड करेगा थोड़ा सा? यस सर। ओके, सो ये एक है, ये पहले ये जो हमने यहां तक की जो ये बातचीत पढ़ी थी ना, वो ये है कि whose rotation matrix part is identity, ठीक है? और उसका जो पोजीशन वेक्टर पार्ट है that locates the point being described. सो सिर्फ जो हमें उसका ये जो हमें नजर आ रहा है, इसका ये वाला पॉइंट हमें सिर्फ इसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है और इसमें कोई रोटेशन नहीं। लाइकवाइज अब मैं इसको वापस ले आऊं और मैं इसको यहाँ पे कोइंसिडेंट कर रहा हूं, कोइंसिडेंट मींस ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, और अब मैं अगर इसको रोटेट करता हूं लाइक दिस, ऐसे देखो ये मैंने दोनों ये कोइंसिडेंट थे, इसको मैंने रोटेट कर दिया, सो मैंने इसको z के अबाउट रोटेट कर दिया। अब क्या है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, हाउएवर इसकी जो ओरिएंटेशन है या रोटेशन है उसमें चेंज आई है। सो अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ छोड़ूं एंड आई गो बैक टू द स्लाइड और मैं आपको ये बताऊं कि लाइकवाइज इसी में पढ़े, लाइकवाइज an orientation could be represented by a frame whose position vector part is 0. तो इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में, सेकंड वाले केस में, ये ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है, दिस विल बी अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है? हाउएवर इसका जो रोटेशन पार्ट है वो एग्जिस्ट करेगा। वो रोटेशन पार्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आपको ये मेरी बात क्लियर हुई है कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ? प्लीज समबडी टू रिस्पॉन्ड। मुझे बड़ी फिक्र लग जाती है कि यार ये ऐसा तो नहीं है कि मैं बस अपने आप से बोली जा रहा हूँ और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। जी प्लीज समबडी टू रिस्पॉन्ड। जी प्लीज। सर जी ओके, जी सवाल है तो पूछिए काइंडली, जब तक हम क्लियर नहीं होंगे आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ना समझ आई तो फिर आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो आई एम नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड मैं अभी आपको ये बताने लगा हूँ कि ट्रांसलेटेड फ्रेम, जो अभी मैंने बात की थी कि जो ट्रांसलेटेड फ्रेम है वो क्या होगा। अब देखिए, अगर मैं इन जो अभी मैंने आपको दूसरे कैमरे के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि वो फ्रेम्स कैसे मैंने मूव किए थे जिनमें रोटेशन नहीं, तो ये एग्जैक्टली वही चीज है, मैं उसको यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि आई हैव अ फ्रेम ए, फ्रेम ए की ओरिएंटेशन इज एग्जैक्टली द सेम, इज रोटेशन इज एग्जैक्टली द सेम जो कि फ्रेम बी की है। I know a point which is in frame B. I know a point, ये वाला पॉइंट है
जिसकी पोजीशन relative to B is known to me. I also know the position of B origin with respect to A. So now if I am asked कि यार अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन with respect to A frame बताएं, सो मैं ये इस तरीके से सिंपली बाय वेक्टर एडिशन मैं ये निकाल सकता हूं। ठीक है जी, यहां तक कोई शक नहीं है, मैं आगे मूव कर सर ये जाता जरा हूं। रिपीट कर। जी दोबारा बताऊं? ओके यस जी ओके। अब देखिए ये दो फ्रेम्स थे, फ्रेम ए एंड फ्रेम बी। अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन देखूं तो देखिए इनके एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है दोनों वो भी अलाइंड है, पैरेलल है, मींस अलाइन से मतलब है कि पैरेलल है। इसी तरह ए वाई बी और वाई ए ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, वे भी पैरेलल में है, जी ए और जी बी पैरेलल में। तो इसका मतलब है कि इन दोनों फ्रेम्स की रिलेटिव रोटेशन कोई नहीं। ओके हाउएवर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो फ्रेम बी है ये फ्रेम ए से दूर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि एक सर्टेन डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है। और वो मुझे कैसे पता लगेगा? वो मुझे पता लग जाता है व्हेन आई नो पोजीशन ऑफ बी ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मुझे ये पोजीशन पता लग गई, बी की ये वाली पोजीशन मुझे नो हो गई। सिमिलरली एक पॉइंट है जो फ्रेम बी में पड़ा हुआ है, बाय आई मीन फ्रेम बी में पड़े होने का मतलब क्या है कि ये मेरा एंड इफेक्टर का सेंट्रल पॉइंट है। तो मैंने किसी भी चीज को अगर ग्रिपर से उठाना है लेट्स सी या वेल्ड करना है, तो मैंने इस पॉइंट को उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां मैं वेल्ड करना चाहता हूं। तो अब क्या है, नाउ आई नो दिस पॉइंट, द पोजीशन ऑफ दिस डॉट इन फ्रेम बी, ये मुझे इस वेक्टर से ये पता है। तो मैं इसको निकाल सकता हूं by adding these two vectors which are known. So this is called mapping, which involves translated fields. So let us move forward and now talk about the mapping which involves rotation. ये वो जो दूसरी वाली एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बता रहा था क्या कि दोनों फ्रेम्स कोइंसिडेंट हैं, उन दोनों के ओरिजिन एक जगह पे हैं। So let just look at this, look at this point यहाँ पे मैं अच्छा लेट मी जस्ट देखी अगर कलर का के जरा बेहतर नजर आना शुरू हो जाए। ओके सो सॉरी मैंने नहीं पिक किया कलर को। ओके नाउ ठीक है। सो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं सो यहाँ पे आप देखें कि ए ओरिजिन एंड बी ओरिजिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब है कि इन दोनों में देयर इज नो ट्रांसलेशन। However, आप देखिए YA और YB इन दोनों के दरमियान एक एंगल है, इसी तरह ZA ZB के दरमियान भी एक एंगल है और XA और XB के दरमियान भी एक एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेम B जो है ये रिलेटिव टू A रोटेट किया है। और वो मुझे कैसे पता लगता है? वो वाली चीज मुझे if I know this rotation vector which gives me a rotation of B relative to A, तो इसका मतलब है कि मुझे रोटेशन पता लग गई है। नंबर 2 अगेन ये वही वाला वेक्टर P एक वही वाला पॉइंट है जो B में मुझे नोन था, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट which is known in B जो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। So I know the position of a point with respect to B या relative to B. So if I multiply these two vectors, these two matrices, not vectors, these two matrices, one is the matrix, the other is the vector. So I get a vector which gives me the position of this dot in frame A. So here this is the rotation of the frames. Okay, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ और अब मैं आपको रोटेटेड फ्रेम्स पे दोबारा लेके जा रहा हूँ
जहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा R11 R12 वाला मैट्रिक्स है, इसकी मेरे पास कैसे वैल्यूज आती हैं। अब आपने फिर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, ये रोटेशंस, ये चीजें, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है, तो मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन कि थोड़ा सा अंगड़ाई ले लें, अपने आप को स्ट्रेच कर लें एंड देन अटेंटिव हो और ये देखें कि ये मैं क्या करने लगा हूं यहाँ। ओके, सो ये जो ऊपर वाली इस वक्त आपको इक्वेशन नजर आ रही है, ये नई नहीं है, ये हमने पढ़ी है, ये वी हैव रेड दिस इक्वेशन, ये कोई अभी हमारे लिए नई नहीं है, हमने ये भी पढ़ी है। और इसमें क्या हमने कहा था कि this is xb frame with respect to a frame. This is xb vector. This is xb vector of b frame relative to frame A. मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके जहनों में ये चीज बैठनी शुरू हो जाए। This is, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, this is yb vector of frame B with relative to frame A. This is ZB vector of frame B relative to frame A. और ये जो इनके डॉट प्रोडक्ट्स होंगे, वो डॉट प्रोडक्ट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं यहाँ R11, R12, R13 में डालूंगा, सो मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये जो फ्रेम XB था, जो B फ्रेम था, वो मैंने इसके साथ लगा दिया। अब ये कोइंसिडेंट है, अभी इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ रोटेशन की बात करेंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। हम ट्रांसलेशन की बात पिछले स्लाइड पे कर चुके हैं, सो हम यहाँ सिर्फ रोटेशन की बात करेंगे। सो अगर मैं इस फ्रेम X फ्रेम B को रोटेट करूं like this, ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा है कि मैंने मैंने फ्रेम B को रोटेट कर दिया है। देखिए इनके Z अभी भी दोनों अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फ्रेम B is rotated about Z axis, and if I say that this has been rotated by an angle theta, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इन दोनों की XB की प्रोजेक्शन और XA और YA निकाल सकता हूं, इसी तरह YB की प्रोजेक्शन ऑन YB YA और XA निकाल सकता हूं। तो पहले मैं इसको देखता हूं। सो अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन YA की डायरेक्शन में निकालना चाहूं तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, और इसी तरह इसकी प्रोजेक्शन X के ऊपर would be something like this. ये बात समझ आई, ये हम पहले कर चुके हैं। और अगर ये दोनों ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये क्या होगा, ये इसका cos थीटा होगा और ये इसका sin थीटा होगा। ये बात ठीक है। अब मैं आपको यहां पे लेके आना चाहूँ, ये मैं रोटेशन मैट्रिक्स डालने लगा, एक्चुअली ये R11 R12। सो ये क्या है, ये जो पहला है ये क्या है, XB की प्रोजेक्शन ऑन Y। तो मैं ये कह देता हूं, तो इसको मैं कह देता हूं प्रोजेक्शन ऑफ XB, और इनको मैं कह देता हूं ऑन। सो प्रोजेक्शन ऑफ XB ऑन XA क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ XB ऑन XA क्या चीज है,
मैंने आपको यहाँ लिख के दिया, मुझे बोले कोई बंदा कि ये क्या वैल्यू में डालूं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स सर जी XB क्या cos वैल्यू theta. डालूं, cos थीटा, वेरी गुड. So let me just write down cos theta. Very good. इसी तरह projection of xb on ya, यही वाला है क्योंकि ये इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर है ना, मैंने इसको ड्रॉ यहाँ कर दिया है. अदरवाइज अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ऐसे देखूं, सो ये प्रोजेक्शन जो है ये साइन थीटा बनती है. So projection of xb on ya is sin theta. ये भी क्लियर हो गया. मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये जरा थोड़ा सा मैं दूसरे को लेके आऊंगा तो ये थोड़ा सा हमें ये वैल्यू काम करेगी, तो इसको मैं मिटा देता हूं लाइक दिस. अब मैं वापस जाता हूं. अच्छा, देन प्रोजेक्शन ऑफ zb on za क्या है जी, दोनों के दरमियान एंगल क्या है? Theta plus 90 sir. जी है, थीटा प्लस 90 कैसे हो गया? z1 za और zb के दरमियान एंगल अच्छा ZA ZB के दरमियान सर 0. 0. सो यहां पे आ गया 0. ठीक हो गया? Yes sir. ओके. अब आ जाए दूसरी तरफ, अब आ जाए x, अब y b को देखिए. अब मैं y b की प्रोजेक्शन लेने लगा हूं. y b की प्रोजेक्शन किस पे लेनी है मैंने? x a पे और y a पे. तो ये एंगल भी थीटा है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. ऐसे ही तो इसकी प्रोजेक्शन जब मैं इसके ऊपर लूंगा तो मुझे इसको ऐसे इसके बराबर यूं तकरीबन बनाना पड़ेगा, लाइक दिस. सो ये जो प्रोजेक्शन है ये इसकी वाई ए पे प्रोजेक्शन है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू cos ऑफ थीटा. और ये जो प्रोजेक्शन है ये इसकी ए के ऊपर है विच इज, क्योंकि इसके सामने वाला है तो दिस इज साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी. सो अब ये देखें कि प्रोजेक्शन ऑफ YB on YA, YB on YA will have a negative sign because इसकी डायरेक्शन XA से ऑपोजिट है. सो ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखने लगा हूँ. सो दिस विल बी माइनस sin थीटा and this will be again cos थीटा. this will be 0. और ये देखिए ZB, और अच्छा अब आ जाए इसका, ये सारे अब y भी हो गए. अब z पे आ जाए. z की x के साथ प्रोजेक्शन 0, z की y के साथ 0 और z की z के साथ 1 cos 0 1. सो ये यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाए. सो नाउ दिस matrix gives me a rotation about z axis by an angle theta. इसको हम कैसे इसको rotation about z by angle theta. इसको हम कैसे this is rotation about z by an angle theta. ये बात ठीक है जी, समझ आ गई? Yes sir. ओके, जबरदस्त. अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ. अब ये रोटेशंस देखिए, हमने z की रोटेशन ऑलरेडी देखी. अब मैं x पे और y पे रोटेशन आपको दिखा रहा हूँ. अच्छा, ये देखिए आपको ये जो एरोज नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है? ये आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. सो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अराउंड द एक्सिस
तो ये राइट हैंड रूल को फॉलो करती है। तो लेट्स सी, अगर ये देखिए मैंने आपको ये मेरा एक्स एक्सिस है जो आपको नजर आ रहा है, और इसके ऊपर अगर मैं रोटेशन जो है वो ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूंगा तो थंब की डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव जाएगा। सो अगर इफ आई एम रोटेटिंग लाइक दिस, इफ आई एम रोटेटिंग लाइक दिस, सो इसकी डायरेक्शन इधर पॉजिटिव जाएगी। तो यही चीज आपको इस वक्त यहाँ नजर आ रही है। ये चीज आपको यहाँ नजर आ रही है कि ये एक्स की डायरेक्शन और ये इस तरह पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, सो आर एक्स थीटा। सो अब ये जो मैंने आपको एक जी वाला करके दिखाया है, अब ये देखिए एक्स की वैल्यू ये नहीं, सॉरी ये जी की वैल्यू जो मैंने आपको करके दिखाई है, जो मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाई है, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, और जो जी वाला इसका कॉलम है उसमें देखें उसमें वन आ है। अब अगर मैं y में देखूं, सो आर वाई की वैल्यू आपको इस तरह मिलेगी। दिस इज एनी रोटेशन अबाउट y, एनी रोटेशन ऑफ एंगल थीटा अबाउट y. So if you are given r y 30, तो आप इस cos इसमें थीटा में 30 डाल दें, you will get the rotation matrix of rotation about y, and इसी तरह rotation about x आपको इसमें मिल जाएगी। So ये आपको जो ये तीन इस वक्त मैं मैट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगी। मैंने एक आपको करके दिखाया, कोई जरूरत नहीं है दूसरों को अगर आप सॉल्व करना चाहिए बेशक करें, बट ये दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, और वो पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। So this is the mapping which involve rotated frames. जी अब मुझे बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, sir, all clear. ओके, जबरदस्त। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं आपको ना दो एग्जांपल्स करके देता हूँ। एक वन इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ फ्रेम्स एंड द अदर इज रिलेटेड टू जो लेफ्ट साइड पे आएगी वो ट्रांसलेशन। तो मैं आपको ये रोटेशन वाली एग्जांपल पहले करके देता हूँ, आपको बहुत क्लियरली ये चीजें समझ आएंगी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ। मैं आपको भी ये टू डायमेंशन करने लगा हूँ, और जो z है वो दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड और आउट ऑफ दिस क्या नाम है स्लाइड। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मेरे पास दिस इज x, और ये इसको मैं x a कहता हूँ, ये मेरे पास a फ्रेम है, ये मेरे पास x b frame. Then I have a z frame जो कि इसके साथ थोड़ा सा इसको कम करते हैं। This is x b. This is sorry, ये मैंने क्या किया? Let me just correct it. ये ऊपर वाला जो है this is y. This is y. Sorry. I have made a mistake here. So this is y. अच्छा, this has been rotated. अच्छा, एक और चीज इसके अंदर डाल देते हैं कि I know a point here जो कि कोई एक पॉइंट P है जिसकी मुझे जो कि एक वेक्टर और सॉरी जो कि ये वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी के and this is actually P in P with respect to B है, and this has 4 units here and 2 units here. ये बात समझ आ गई? और अब इन दोनों के जो x का z है वो भी is coming out of this slide, और
जो v का z है वो भी कमिंग आउट ऑफ दिस लाइक दैट. तो इसका मतलब है कि देयर इज नो ट्रांसलेशन, दिस इज ओनली रोटेशन, और this is rotated by an angle theta which is equal to 30 degrees. मैं यहाँ पे इसका ये एंगल डाल देता हूँ. So this is 30 degrees, और एक्चुअली ये जो ये रोटेशन है ये भी 30 degrees की ही होगी, दोनों थीटा होंगे, एंड वी नो कि थीटा इज इक्वल टू 30 degrees. So अब मैं अगर इस पॉइंट बी को ए में देखना चाहूँ तो बड़े आराम से हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और हमने कहा था कि जी P in A would be equal to rotation of B with respect to A and position of P with respect to B. ये बात ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि R B with respect to A या relative to A क्या होगा. So actually this will be rotation about Z by an angle 30 degrees. और मुझे पता है ये क्या है, ये क्या था जी Z वाला, this was cos theta minus sin theta cos theta 0 0 1 0 0. सो ये मेरे पास रोटेशन मैट्रिक्स था, और इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डाल दूं, सो दिस विल बी 0.86 minus 0.5, this is 0, this is 0.5, this 0.86, 0 0 0 1. सो ये मेरे पास आ गया RZ with respect to by an angle 30 degrees, जो कि ये है. और अगर मैं P with respect to B ये भी मुझे नहीं है, so that is actually known to me as 2 in x axis, so 2 4 और y में कोई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा. so अब मैं इस सिचुएशन के अंदर अपनी वैल्यूज डालता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं P with respect to A जानने के लिए मुझे 0.86 minus 0.5 0 0.5 0.86 0 0 0 1 इसको मल्टीप्लाई करना है with PB which is 2 4 and 0, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो जवाब आता है इसको मैंने सॉल्व किया था, तो इसका जो जवाब है मेरे पास वो आता है minus 0.28 minus 0.28 4.47 और 0. सो ये मेरे पास इसका आंसर. तो ये देखिए कि मैंने वो जो पीछे से हम अभी पढ़ते हुए आ रहे थे उसके जरिए मैंने ये आपको एक चीज समझा दी कि कैसे इस रोटेशन को हैंडल करें. अभी ट्रांसलेशन की बात करते हैं, यहाँ फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि ये वाली चीज आपको जो है वो और पता लगे. सो यहाँ पे क्या है मेरे पास, पोजीशन की मैं बात करूंगा. सो आई है एक मेरे पास ये फ्रेम है, अगेन वही वाला which is XA और YA. मेरे पास एक फ्रेम और है जो कि B है, जो आप देखिएगा वो मैं यहाँ बनाने लगा हूँ. दिस इज XB एंड YB. YB के अंदर एक पॉइंट है मेरे पास जो कि पॉइंट P है, ये वाला, और ये मुझे पता है कि इसकी दिस इज 4 एंड दिस इज 3. सो मुझे PB जो है ये नॉन है. सिमिलरली मुझे एक चीज और भी नॉन है जो कि मैं अभी ट्रांसलेशन की बात करने लगा हूँ. तो मुझे ये नॉन है जो कि क्या है PB
origin with respect to A, और इसकी अगर मैं ऐसे इसको यहाँ नीचे ड्रॉ करूँ, सो ये मेरे पास 8 और ये 5 है। सो अब मैं निकालना क्या चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ this I want to find out. ये थोड़े टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं, जरा इसको प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस. So I want to find out P, point P which is located in B with respect to A. So अगर इसकी मैं इक्वेशन अपने सामने यहाँ पे आपके सामने लिखूं, so ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी कि P A will be equal to P B. सबसे पहले तो ये AP हमने आपको याद होगा कि हमने ये बात कही थी कि जो इसका जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी होता है। अगर मैं इसको लेके आता हूँ सिर्फ ट्रांसलेशन होती है तो उसका जो पार्ट है वो आइडेंटिटी होता है। एक तो ये है कि मैं इसको बिल्कुल इस तरह से निकाल लूँ कि मैं इसको कहूँ कि APB ओरिजिन और इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास सीधा सीधा निकल आएगा 8 और 3 11 5 और 4 9। एक तो ये तरीका है कि मैंने अभी पहले लेट्स सी पहले उस तरह कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि P B ओरिजिन A प्लस P B। सो ये क्या है मेरे पास 8 5 0 प्लस दिस इज 3 4 0 and this comes to be equal to 8 और 3 11 5 और 4 9 और 0। सो ये मेरे पास निकला। इसमें एक तरीका और है जो कि अच्छा चलो वो मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन में जाता हूँ तो फिर मैं उसके बारे में बात करूँ। अभी यहाँ पे ठीक है। सो दिस इज द मैपिंग व्हिच इन्वॉल्व्स द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम्स। अब मैं आगे मूव करता हूँ और मैं आपको इसके बाद अब क्या है जी दिस इज दी अच्छा ओके इससे पहले कि मैं ये जनरल फ्रेम्स की बात करूं मुझे ये बताइए कि आपको पिछली बात समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा ये देखिए ओवरडोज तो नहीं हो रही? No, sir. ओके एनीबॉडी हु फील्स कि यार ये बहुत ओवरडोज हो रही है ये नहीं समझ रहा। ओके ठीक है अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो हम वी मूव फॉरवर्ड एंड वी नाउ टॉक अबाउट द मैपिंग व्हिच इन्वॉल्व्स द जनरल फ्रेम्स। अब जनरल फ्रेम्स में आपको क्या नजर आ रहा है? लेट्स सी अगर मैं इधर देखूं सो आई हैव अ फ्रेम A and I have a frame B। अब देखिए ये फ्रेम B जो है इसकी ओरिएंटेशन फ्रेम A से डिफरेंट है और इसकी लोकेशन भी फ्रेम A से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेम B ये न सिर्फ रोटेट किया है विद रिस्पेक्ट रिलेटिव टू A बल्कि ये ट्रांसलेट भी किया है रिलेटिव टू A। सो अगर अब मैं ये AP निकालना चाहता हूँ मैं इस पॉइंट को जो ये पॉइंट है जो B में मौजूद है P पॉइंट जो B में मौजूद है उसको विद रेफरेंस टू A देखना चाहता हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द रोटेशन ठीक है एंड पोजीशन। अच्छा इसको आपको याद है मैंने इसको रोटेशन कहा था, इसको मैंने पोजीशन कहा था और इसको मैंने ट्रांसलेशन कहा था। अब बहुत से मेरी बात आपने सुनी नहीं यहाँ पे कि मैं क्या करने लगा हूं कि मैं रोटेशन और ट्रांसलेशन को इकट्ठे करने लगा हूं। रोटेशन और ट्रांसलेशन को इकट्ठा करने लगा हूं। सो मुझे ये इस तरह नजर आएगा। वो कैसे नजर आ रहा है ये दिस इज माय अब मैंने इसको टी का नाम दे दिया एंड टी डिनोट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने रोटेशन और ट्रांसलेशन को मिला के इसको नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ।
ये अभी आप सिर्फ ये जो लाइन, ये लाइन लगी है, इसके ऊपर का पार्ट देखिए। ये नीचे जो 1001 है, इनको 1 मिनट के लिए जरा भूलें। सो देखिए मैंने क्या किया, एपी, ये यही वाला एपी है, ये जो आपको नजर आ रहा है, मैं जस्ट लेजर उठा लूं, ये वही पी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये देखिए ये आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी रिलेटेड टू ए, ये नजर आ रहा है। दिस इज P origin with respect to A आपको ये नजर आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं रोटेशन और ट्रांसलेशन को इकट्ठे करके ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा हूँ, जो कि मुझे यहाँ अब नजर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ, ये दोनों को मैंने इकट्ठा करके इसको मैंने ट्रांसलेशन कह दिया। ठीक हो गया? अच्छा अब आप देखिए इसके नीचे मैंने एक एक लाइन है। अच्छा ये इनफैक्ट हम इसको वेक्टर को 4x1 और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को 4x4 बनाना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर मैं ये नीचे ये रो ऐड नहीं करता तो मेरे पास ये 3:1 का रहता है। एपी जो है मेरे पास ये 3x1 का रहता है। ट्रांसलेशन मेरे पास बन जाती है 3x4 की, और ये मेरे पास 3x1 का रहता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? सो क्या हो रहा है कि यहां पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये गड़बड़ करती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसके नीचे एक ऐड, अच्छा ये रो ऐड करने से किसी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब मैं ये इसके साथ वैल्यू ऐड करता हूं तो दिस बिकम्स अ होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म। होमोजेनियस कैसे कि अब देखें, अगर अब मैं इसकी होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म की टाइम पे इसकी अभी डायमेंशन देखूं तो आप ये देखें, दिस इज नाउ 4x1, this is 4x4 and this is 4x1। अब देखें कि मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको 4x1 का एक आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखें इन दोनों के ये दोनों 4s। सो इसलिए इसमें हमने ये एक ऐड की है और इस एडिशन को हम कहते हैं कि वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म। और दो क्या हमने इस पूरे इसके अंदर किए, इस स्लाइड के अंदर, एक हमने इसको होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया, और नंबर 2 हमने क्या किया कि हमने रोटेशन और ट्रांसलेशन को मिला के ट्रांसफॉर्मेशन बना। आई रिपीट, 1 हमने ट्रांसलेशन सॉरी हमने रोटेशन और ट्रांसलेशन को मिला के ट्रांसलेशन को मिला के ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर, ये मैंने गलत लिखा हुआ, दिस इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ये आप भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, मैं भी भूल रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। कभी मैं कहूँ ना कि मैं क्यों कंफ्यूज हो, सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो हमने एक रोटेशन और ट्रांसलेशन को मिला के ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, और नंबर 2 अपनी मैथमेटिक्स की ईज के लिए या मैथमेटिकली वायबल बनाने के लिए हमने इसके नीचे एक ऐड करके रो और हमने इसको बना दिया है होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म। अब ये चीज आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम अब रोटेशन और ट्रांसलेशन से निकल के ट्रांसफॉर्मेशन में आ। सो इफ यू आर ओके विद दिस, सो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखी थी 2.4 को आप और 2.4 को और 2.6 को हम चलिए, what we do is that we take it to the next lecture, और ये दोनों जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारे पास कोई अभी तक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या इस स्लाइड? आई रिपीट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी 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 बताइए। सर ये स्लाइडें और
लेक्चर एलएमएस में अपलोड होगा? जी बिल्कुल होगा, आपने प्रीवियस देखे, प्रीवियसली लोडेड है। ओके सर। यस हाँ, सर। ये भी अपलोड होगा, उसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। यस लेकिन सर, मुझे आपकी ओके आवाज ज्यादा बस, सर नहीं है, मेरा नेट सर काफी खराब रहता है ओके तो। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो आप प्लीज इसको जरूर लेक्चर को देखिएगा। इसको मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि जो कुछ हमने आज पढ़ा है, आपने काइंडली इसको घर जाके इस पूरे को लेक्चर को भी देख लें एक दफा, बुक से देखना है बुक से देखें। लेकिन कल हमने इसके अंदर फिक्स्ड एंगल रोटेशन और आइलर एंगल रोटेशन को चले जाना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो वो आपको आगे समझ आएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि प्लीज व्हेन यू गो बैक होम, मैं ये लेक्चर डाउनलोड करके और एलएमएस में भी चढ़ा दूंगा, आप इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर व्हेन यू कम फॉर द क्लास टुमारो। एक चीज, नंबर 2, वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट 8:45। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब उससे 5 मिनट पहले ज्वाइन करें क्लास को, सो दैट वी हैव फुल टाइम विद अस, जिसके अंदर हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, नहीं कर पाए तो हम फिर दोबारा उसको, एक हमारी क्लास मिस हुई है, हम वो क्लास इसी वीक के अंदर कोशिश करेंगे अरेंज करके, तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व करवा दूं ताकि ये थ्योरी जो है वो उसके साथ रिलेटेड हो। तो अब अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। आप मुझे बताइए अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है